شادی کے بعد یہ میری اگلی صبح تھی۔ میں سب سے نگاہیں چرائے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی کہ جب ہی میرے کانوں میں بڑی بے باک سی آواز پڑی۔ وہ میری 16 سالہ نند کی تھی جو ناشتے کے دسترخوان پر بیٹھی ناشتہ کرنے کی بجائے اپنی ماں سے اس بات پر جھگڑا کر رہی تھی کہ آپ میری شادی کیوں نہیں کروا دیتی، آخر کب تک میں ایسے ہی زندگی گزاروں گی۔ نند کے جملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے حیرت سے نگاہیں اٹھائی کہ اس 16 سالہ جوان حسینہ کو دیکھ رہی تھی جو بڑی دیدہ دلیری اور بے باکی سے اپنے بھائیوں اور ماں کے سامنے اپنی شادی کی بات کر رہی تھی، جبکہ میرے گھر میں تو ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت تو مجھے اس بات پر ہوئی جب میری ساس نے بڑے دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں اس سے کہا، صوبیہ وقت آنے پر تمہاری شادی بھی ہو جائے گی، ابھی ناشتہ کرو، اور بھی کام ہے۔ اگر میری ساس کی بجائے میری ماں ہوتی تو ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر پڑ چکا ہوتا کہ جوان بھائیوں کے سامنے بہن اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتی ہے، لیکن یہاں تو یہ معاملہ تھا۔ ساس کی بات سن کر وہ غصے میں ناشتے کی پلیٹ پٹکتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر اور باقی کے بھائیوں پر ڈالی تھی جو سب کے سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، جیسے ہی ان کی نظر میں یہ کوئی خاص بات نہ ہو، جبکہ اپنی نند کے منہ سے ایسی باتیں سن کر تو مجھے شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور جب کمرے میں واپس آئی تو اپنے شوہر سے پوچھا، سائم یہ سب کیا تھا؟ تمہاری بہن ابھی 16 سال کی ہے اور وہ اس طرح سب کے سامنے اپنی شادی کے لیے بےتاب ہو رہی تھی کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ جوان لڑکیوں کے منہ سے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ جو میرے منہ میں آیا میں نے اپنے شوہر کے آگے کہہ دیا تھا، اور پھر یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے شوہر کے چہرے کے تاثرات تن گئے تھے۔ وہ غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ صوبیہ کے حوالے سے کوئی بات نہ کرنا، وہ ہم سب کی چھوٹی اور لاڈلی بہن ہے، شادی کرنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے، ابھی کم عمر ہے، جب اس کی مناسب عمر ہو جائے گی تو ہم خود اس کی شادی کر دیں گے، لیکن تمہیں اس سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سائم کی باتوں نے تو مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ بجائے اپنی بہن کو سمجھانے کے، اسے صحیح اور غلط بتانے کے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے خاموش ہو جانا چاہیے۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، اسی لیے شوہر کا غصہ دیکھ کر چپ کر گئی، لیکن رات کو ولیمے کے بعد جب گھر واپس لوٹے تو اس کی چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ وہ بہت زور زور سے کہہ رہی تھی کہ بھائی نے اپنے ولیمے پر اتنا پیسہ لگایا ہے، لیکن جب میری شادی کی بات آتی ہے تو سب کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ اس کے لفظوں نے مجھے ہکا بکا کر دیا تھا۔ وہ تو بے شرمی کی ساری حدیں پار کر رہی تھی، جبکہ کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے کمرے میں بالکل ٹھیک ٹھاک گئی تھی۔ سائم نے بھی اس کی بات سن لی تھی۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر جانے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، صوبیہ کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے، میں جا کر دیکھتا ہوں، تم پیچھے نہ آنا، خاموشی سے آرام کرو۔ پھر کافی دیر بعد وہ واپس لوٹ کر آئے اور صوبیہ کی چیخوں کا سلسلہ بھی تھم سا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، آخر آپ کی بہن کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ چپ کر گئے، کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری نند کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ میں نے کسی بھی جوان لڑکی کو اس طرح اپنی شادی کے بارے میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ صوبیہ کے پاس تو ہر رات کرنے کو شاید یہی ایک بات تھی۔ میں اس گھر کی بڑی بہو تھی، باقی سارے بھائی چھوٹے تھے اور صوبیہ سب سے چھوٹی، شاید وہ لاڈ پیار میں بگڑ گئی تھی۔ کم سے کم مجھے تو یہی لگا تھا۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر پھر ہنگامہ ہو رہا تھا۔ پھر وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میری شادی کروا دیں، مجھ پر رحم کریں، میرے لیے اس طرح رات گزارنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ پر آپ لوگوں کو مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ میں ساری رات بستر پر تڑپتی ہوں، آخر میں کب تک اذیت برداشت کروں گی؟ میری ساس پھر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر وہ الٹے پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بستر پر تڑپنے والی بات نے تو مجھے شرم سے پانی پانی کر دیا تھا۔ دیوروں کے آگے ایسی بات سن کر میں نظر اٹھانے کی ہمت نہیں رہی تھی، جبکہ وہ سب نارمل انداز میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے اور مجھے یہ سب کچھ نامناسب لگ رہا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر روزانہ اسی طرح کا ہنگامہ ہوتا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو بھی فون پر یہ بات بتائی تو کہنے لگی کہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، اسی لیے بگڑ گئی ہوگی، لیکن تم اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا اور نہ ہی اس معاملے میں پڑنا، ایسا نہ ہو کہ سائم کا دل تمہاری طرف سے کھٹا ہو جائے۔ بہن کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، بھائی کا دل ہمیشہ اس کے لیے نرم ہی ہوتا ہے۔ اماں کی بات کو میں نے پلو سے باندھ لیا تھا اور خاموشی سے بڑی بہو ہونے کے ناطے گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ کھانا پکانے سے صفائی تک سارا کام میرے حصے میں آ گیا تھا۔
सोबिया सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती और जब भी कमरे से बाहर निकलती तो इतना हंगामा करती कि मैं हैरान रह जाती। इसकी बस यही बात होती कि मेरी शादी कब होगी, आप लोग मेरी शादी क्यों नहीं करते, मैं बहुत तड़पती हूँ, मुझसे अब रहा नहीं जाता। मेरी शादी को ऐसे ही महीना गुजर गया। इस एक महीने में मेरे और साइम के दरमियान काफी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। इसीलिए मैंने साइम से कहा कि अपनी बहन का इलाज करवाओ, मुझे तो ये कोई जहनी मरीजा लगती है। क्या फिर इसकी दोस्तें ठीक नहीं हैं? साइम कहने लगे, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सोबिया के मामले में मत पड़ो, वो जाने और अम्मा जाने। अगर अम्मा चाहेंगी तो हम इसकी शादी भी करवा देंगे, लेकिन अम्मा की नज़र में अभी वो कम उम्र और नादान है, और वैसे भी इस उम्र की लड़कियां ऐसी बातें ही करती हैं। मैंने साइम को कहा कि नहीं, इस उम्र की लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती, ऐसी बातें तो बेहया लड़कियां करती हैं, जिन्हें बाप भाई का लिहाज ना हो, जिनके अंदर हया बाकी ना बचती हो। कैसे वो अब भाइयों के आगे अपनी शादी का जिक्र करती है। इसके चेहरे पर जरा से भी शर्मो हया के तासुरात नहीं होते। मैं तो कभी अपने बाबा के सामने इस तरह की बात कहने का सोच भी नहीं सकती थी। साइम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा कि तुम सोबिया के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैंने हमारे हनीमून का प्रोग्राम बनाया है और सारा बंदोबस्त कर लिया है। मैं और तुम दोनों मिलकर अच्छी जगह घूमने जाएंगे तो तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। शादी के बाद हम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह वक्त ही नहीं गुजार सके। हनीमून के नाम पर मैं खुश हो गई थी और फिर मेरे शोहर ने सारा इंतजाम कर लिया। जिस रात हमें जाना था वो पहले सोबिया के कमरे में गए, कहने लगे कि मैं इससे मिलकर आता हूँ। मैंने साथ चलने की बात की तो मुझे रोक दिया। कहने लगे, इसका कुछ पता नहीं होता कि किस बात पर गुस्सा आ जाए, ऐसा ना हो चीखने चिल्लाने लगे या फिर अपनी शादी का जिक्र करे, फिर तुम मेरी बहन को बुरा कहोगी, इसीलिए आराम से कमरे में बैठ जाओ। साइम की बात सुनकर मुझे अपनी माँ की बात याद आई थी कि कुछ भी हो, बहन भाई के मामले में वाकई नरम दिल होते हैं। शायद मेरे शोहर को भी मेरा सोबिया को बुरा कहना अच्छा नहीं लगा था। जब भी वो मुझे कमरे में छोड़कर चले गए थे, फिर काफी देर बाद मेरे शोहर इसके कमरे से निकल कर आए तो इनके चेहरे पर बड़ी खुशी के तासुरात थे, जैसे कोई जंग जीत ली हो। मैंने हैरत से पूछा कि आपको क्या हो गया है, किस बात पर इतना खुश हो रहे हैं? मेरी बात सुनते ही मेरे शोहर के चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई थी। कहने लगे, कुछ नहीं, सोबिया का मूड अच्छा था तो मैं भी खुश हो गया। फिर इन्होंने मेरा सामान पैक करवाया और हम अगले ही दिन निकल गए। आने वाले 15 दिन हमने मरी में बहुत ही खुशगवार गुजारे थे। बर्फानी जगह और पहाड़ी इलाकों ने मेरी तबीयत पर बहुत अच्छा असर डाला था। मुझे साइम के साथ ज्यादा वक्त गुजारने और इन्हें समझने का मौका भी मिला था। हमारी अरेंज मैरिज थी। मैंने शादी के बाद साइम को सही तरह से देखा था, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग तो ना होने के बराबर थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे इनके साथ बहुत वक्त कम मिला। मुझे अंदाजा हुआ था कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने काम और कारोबार को लेकर थोड़े परेशान थे। इनका कहना था कि कभी कभी पैसों का मसला हो जाता है। फिर वो कहने लगे कि कुछ ही अरसे की बात है, फिर तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं भी इनकी इस बात पर मुतमईन हो गई थी। 15 दिन का ट्रिप मुकम्मल करके हम खुशी खुशी वापस लौटे थे, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुए तो वहां सोबिया की चीखों ने हमारा इस्तकबाल किया था। मेरा अच्छा भला मूड एकदम ही गारत हो गया था और वो वही रट लगा कर बैठी थी कि बस अब मेरी शादी होनी चाहिए। भाई की भी तो शादी हो गई है, वो भाभी को लेकर घूमने चले गए हैं, लेकिन मेरी शादी पर सबको एतराज है। भाई लाखों पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन मेरी शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा था कि वो मुझ पर और मेरे शोहर पर नजर लगाकर बैठी हुई थी। मेरा शोहर अपनी मेहनत की कमाई से लेकर गया था तो इसे क्या एतराज था। अब तक मैं इसे मासूम और नादान समझ रही थी कि शायद सबके लाड प्यार में वो ऐसी हो गई है, लेकिन अब वो मुझे बहुत ही चालाक नंद लग रही थी जिसे मेरी खुशियों से हसद हो। मुझे तो लग रहा था कि वो शादी की बात भी इसीलिए कर रही थी क्योंकि मैं यहाँ दुल्हन बनकर आई थी। मैंने एक नफरत भरी नजर इस पर डाली थी और कमरे में चली गई थी। जबकि साइम बाहर ही रुक गए थे, वो सोबिया को इस कमरे में लेकर जाने लगे। मैं गुस्से में पांव पटकने लगी। साइम जब लौटे तो मेरा मूड खराब देखकर हैरत से पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने गुस्से से कहा कि आपकी बहन मुझसे जलती है, इसे हमारे हनीमून पर जाना इतना बुरा लगा है कि इसने इतना हंगामा खड़ा कर दिया। 15 दिन सुकून से गुजारे थे, अब यहाँ आकर फिर सब कुछ वही शुरू हो गया है। ऐसा लगता है जैसे हम इसके पैसों से घूमने गए थे। हर बात पर नजर है। वलीमे वाली रात भी ऐसा ही हंगामा खड़ा किया था, तब भी मैंने सब्र का घूंट पी लिया था। लेकिन ये सब कुछ कब तक चलेगा? इसने मुझे सीने से लगाया और कहने लगे, बस कुछ ही वक्त की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। इनकी बात मुझे समझ नहीं आई थी कि ये वक्त की बात क्या है।
कैसे थी? सोबिया 15 साल की थी। शादी के लिए कम से कम भी इसे 18 साल का तो होना था। 2 साल मजीद इसे झेलना मुझे भी तो मुश्किल लग रहा था, क्योंकि दिन रात किसी भी वक्त वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी। फिर इसकी बातें भी बड़ी बेबाक होती थी। एक दिन मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी, वो मेरे पास आ गई। आमतौर पर मेरी सास इसे मुझसे दूर रखती थी और खुद भी इसके साथ इसके कमरे में ही रहती थी, लेकिन सास शायद नहाने गई हुई थी, इसीलिए सोबिया को मौका मिल गया था और वो कमरे से निकल आई थी। इसने मुझसे अजीब सा सवाल किया, कहने लगी, आप भाई के साथ खुश हैं? क्या भाई आपको वक्त देते हैं? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे का रंग बदल गया। खुश होने के बजाय मुझे इसके चेहरे पर एक अजीब सी नफरत नजर आई थी, जैसे इसे मेरी बात का बुरा लगा हो। फिर इसने एकदम ही ऐसा सवाल किया कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए। कहने लगी, आपको पता है आपके पास कभी बच्चे नहीं हो सकते, आप मां नहीं बन सकती क्योंकि भाई इस काबिल नहीं है। इसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। मैंने गुस्से में कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सोबिया, कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी 15 साल की हो, तुम ये ऐसी बातें कहाँ से आती हैं? और वो धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, कुछ अरसा बाद आपको भी पता चल जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ। जब आप मां नहीं बन पाएंगी, इस घर का कोई भी मर्द बाप नहीं बन सकता, सबके सब नामर्द हैं। ये सुनना था कि मैंने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा और इसे कहा कि अपने कमरे में चली जाओ। बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हारी बात बर्दाश्त कर ली है, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं जान ले लेती। वो मेरा हाथ झटकते हुए कमरे में चली गई थी और मैं अपनी जगह हैरान परेशान खड़ी रह गई थी। ये कैसी बेशर्म लड़की थी जो अपने ही भाइयों के बारे में ऐसी बात कर रही थी। ना इसे कोई डर खौफ था। बड़ी मुश्किल से मैंने खाना तैयार किया और फिर जैसे ही साइम आए तो मैंने इन्हें ये वाली बात बताई कि इनकी बहन ने कैसे इन्हें नामर्द कहा है। मेरी बात सुनकर इसने गहरी सांस भरी और कहने लगे, बच्ची है, इसकी बातों को दिल पर ना लिया करो, पता नहीं इसे क्या हो गया है, क्यों ऐसी बातें करती है। तुमसे इसीलिए कहा था कि इससे दूर रहा करो। मैंने गुस्से में कहा कि मैं इसके पास नहीं गई, वो बावर्ची खाने में आई थी। पता नहीं इसके अंदर कौन से जज्बात हैं जिन्हें आग लगी हुई है। मुझे तो लगता है कि किसी के साथ चक्कर चल रहा है, जब ही तो आपकी माँ सारा वक्त इसके साथ इसके कमरे में रहती हैं, इसे तन्हा नहीं छोड़ती। मैंने बगैर शोहर का लिहाज किए सोबिया के हवाले से ऐसी बात कह दी थी। फिर मुझे एहसास हुआ था कि मेरे शोहर को ये बात बुरी लग सकती है। मैंने इनकी तरफ देखा तो वो मोबाइल फोन में मसरूफ हो गए थे। किसी की कॉल आ गई थी। मुझे तसल्ली हो गई कि इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे सोबिया से नफरत हो गई थी। इसने कैसे कह दिया था कि मेरे बच्चे नहीं हो सकते, जबकि मुझे बच्चे बहुत पसंद थे। इसी तरह मेरी और साइम की शादी को 4 महीने पूरे हो गए। ये 4 महीने मैंने सोबिया को बहुत ज्यादा झेला था। हर वक्त इसकी चीखों पुकार, शादी के लिए शोर शराबा, घर का माहौल ही खराब रखता था। एक दिन मैंने गुस्से में साइम से ये तक कह दिया कि या तो इसकी शादी करवा कर इसे रुखसत करवा दें या फिर किसी पागल खाने में दाखिल करवा दें, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए थे और कोई जवाब नहीं दिया था। रोजाना रात में भी ये तमाशा लगा कर रखती थी। ना जाने क्यों इतना चीखती चिल्लाती थी कि मेरे लिए सोना भी मुश्किल हो जाता था। फिर साइम ही इसके कमरे में जाते थे तो इसकी चीखें बंद होती थी। फिर एक दिन सोबिया मेरे पास आ बैठी और कहने लगी, मैंने कहा था ना आपके बच्चे नहीं होंगे, मेरी बात याद रखिएगा। इसकी बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे बुरा भला कहती, वो उठकर अपने कमरे में चली गई। फिर इस रात इसकी चीखों की आवाज आई तो मेरा दिमाग खराब होने लगा। मैंने साइम से कहा, इसका गला ही क्यों नहीं दबा देते, इसने तो जिंदगी मुसीबत बना दी है। साइम ने कहा कि मैं देख कर आता हूँ, तो परेशान ना हो। और फिर रोजाना की तरह वो निकल गए। मुझे पता था कि अब घंटा भर इन्होंने बहन के साथ ही गुजारना है। 10-15 मिनट तो मैंने इनका इंतजार किया, लेकिन फिर गुस्से से मजबूर होकर मैं भी नंद के दरवाजे पर पहुंच गई। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो अंदर के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं हक्का बक्का सी अपनी नंद को देख रही थी जो चारपाई से बंधी हुई थी और मेरी सास और शोहर मिलकर इसे ना जाने क्या खिलाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे देखते ही साइम गुस्से में कहने लगे, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुमसे कहा था ना अपने कमरे में बंद रहो। मैंने इनसे कहा कि ये आप लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुमसे कहा था ना अपने कमरे में बंद रहो। मैंने इनसे कहा कि ये आप लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं? इसे चारपाई से क्यों बांधा हुआ है? वो कहने लगे, हम इसे खाने में नींद की दवा मिलाकर दे रहे हैं, ये सुकून से सो जाए और हम भी सो सकें। मैंने एक नजर अपनी नंद पर डाली जिसकी हालत काफी खराब मालूम हो रही थी और वो बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी और मुझसे कहने लगी, ये लोग आपसे झूठ कह रहे हैं, इनका सच मैं आपको बताती हूँ। जबकि दूसरी तरफ साइम मुझे बार बार कमरे में जाने का कह रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और फिर मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मैंने इनसे कहा कि इसे आजाद कर दें, रस्सियां खोलें। आखिर कोई जवान बहन के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है? इसके साथ जो भी मामला है हम इसे हल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये सब
गैर इंसानी सलूक है। मेरे दिल में इसके लिए लाख नफरत से, लेकिन मैं इतनी संग दिल नहीं थी कि एक लड़की को इस तरह की हालत में देख सकती। और फिर मैंने लड़ झगड़ कर इसकी रस्सियां खुलवा दी थी। आजाद होते ही वो रोते हुए कहने लगी कि ये लोग मुझे अमल की हुई चीजें खिलाते हैं, ये लोग मुझ पर काला जादू करते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है और मैं चीखती चिल्लाती रहती हूँ, लेकिन इन्हें मुझ पर रहम नहीं आता। ये बस मुझे अजियत पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि मैं इनकी सगी बहन नहीं हूँ और ये सारा कारोबार, सारी जायदाद मेरे नाम है, इसीलिए मुझे अपने पास रखना इनकी मजबूरी है। जिस दिन मेरी शादी हो गई ये सब कुछ इनके हाथों से निकल जाएगा, इसीलिए ये कभी मेरी शादी नहीं करवाएंगे, जबकि मेरे माँ बाप ने मरने से पहले ही मेरा रिश्ता मेरी फूफो के बेटे के साथ तय कर दिया था, मगर ये लोग वो रिश्ता भी तोड़ बैठे हैं। मैं इस घर से आजाद होने के लिए शादी की बात करती हूँ ताकि इनके जुल्म सितम और काले जादू से निजात पा सकूं। सोबिया की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने अपने शोहर की तरफ देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचकर कोने में ले गए। कहने लगे, मैं अपना और तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज कर रहा हूँ। सोबिया के पास करोड़ों की जायदाद है। एक दफा अगर इसने ये जायदाद हमारे नाम कर दी तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा, हम खूब ऐश करेंगे और सोबिया से जान छुड़वा लेंगे। मैं हैरत से अपने शोहर की ऐसी बात सुन रही थी। मैंने तो इसे एक अच्छा इंसान समझा था, लेकिन मेरा शोहर इंतहाई लालची और बेज़मीर निकला था। मैंने अपना हाथ इससे छुड़वाया और कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकती और ना ही मुझे हराम का पैसा चाहिए। एक मजलूम का पैसा लेकर मैं या मेरी औलाद कभी खुश नहीं रह सकती। मैं सोबिया के पास गई और इससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे सब कुछ बताओ। मेरे शोहर ने लाख मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन सोबिया ने मुझे बताया कि वो साइम की खाला की बेटी है और इसके वालिदैन के इंतकाल के बाद वो मजबूरन इस घर में आई थी, लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि ये लोग इतने बुरे निकलेंगे। सबने इसकी जायदाद पर नजर जमाई हुई थी और इसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। वो अपनी खुशी से जायदाद इनको देने को राजी नहीं थी, क्योंकि इसे मालूम था कि जिस दिन इसने अपनी जायदाद इन लोगों के हवाले कर दी ये लोग इसे जान से मार देंगे। इसीलिए ये लोग इस पर जादू करते थे ताकि वो तकलीफ और अजियत का शिकार रहे और एक दिन तंग आकर खुद ही अपना सब कुछ इनके हवाले कर दे। अभी भी ये लोग किसी न किसी बहाने से इसका पैसा हथियाते रहते थे। वो कहने लगी कि आपकी शादी के लिए भी इन लोगों ने कई लाख रुपए मेरे अकाउंट से निकलवाए थे और फिर हनीमून पर जाने से पहले भी भाई ने मुझसे एक बड़ी रकम का चेक साइन करवाया था। ये सब मेरे बाप की मेहनत की कमाई है, इसीलिए मैं चीखती चिल्लाती थी, बुरा भला कहती थी, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं समझ सकी। आप मुझे खुद बताएं, जो लोग काला जादू करते हैं वो कैसे औलाद पा सकते हैं? ये बात तो सबको ही पता है कि काला जादू करने वालों की औलाद नहीं होती और यही बात मैंने आपसे इस दिन कहनी चाही थी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं समझी थी। सोबिया की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वाकई वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैंने भी यही सुना था कि जो लोग काला जादू करते हैं वो बे औलाद रह जाते हैं और शोहर तो ना सिर्फ काला जादू कर रहा था बल्कि एक यतीम का हक खाने की कोशिश भी कर रहा था। फिर इसकी झोली में कोई खुशी कैसे आ सकती थी? मैंने इसी वक्त अपने शोहर से कहा कि अगर आपने अब सोबिया के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगी। साइम मुझसे मोहब्बत करने लगे थे। वो मुझे समझाने लगे कि मैं इस मामले से दूर रहूं, लेकिन अब मैं इनकी एक भी सुनने वाली नहीं थी। मैंने अपनी सास और शोहर दोनों को कह दिया था कि अगर किसी ने भी सोबिया के साथ जबरदस्ती की तो अच्छा नहीं होगा। फिर इससे पूछकर ही मैंने इसकी फूफो का पता लिया था और इनके पास जाकर शादी की बात की थी। वो बहुत अच्छे लोग थे। इन्हें साइम और इसकी माँ ने ही शादी के लिए मना किया था। मेरे कहने पर वो लोग फौरन आकर सादगी से निकाह पढ़वाकर सोबिया को ले गए थे। मेरी सास ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। इनकी साल भर की मेहनत जाया हो गई थी। इन्होंने साइम से कहा कि वो मुझे तलाक दे दें, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया था। वो मुझसे नाराज जरूर थे, लेकिन मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर मैंने प्यार मोहब्बत से इन्हें समझाया कि यतीम का हक खाने से कोई अमीर नहीं हो जाता। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो मेहनत करें, जो कारोबार आपका है इसको वक्त दें, दिल लगाकर काम करें तो खूब तरक्की करेंगे, लेकिन अगर यतीम का हक खाने की कोशिश करेंगे तो लाख मेहनत करके भी कभी जमीन पर खड़े नहीं हो सकेंगे। मेरे शोहर को मेरी बात समझ आ गई थी और फिर मैंने इनका भरपूर साथ दिया। कुछ ही अरसे में मेरे शोहर का कारोबार फलने फूलने लगा था। इन्होंने जाकर सोबिया से माफी भी मांग ली थी और अल्लाह ताला से भी इस बात की माफी मांगी थी कि इन्होंने काले जादू जैसा खबीस अमल किया था। आज मैं और मेरे शोहर एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं।